আমাদের মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন ভারতবর্ষের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন যোগীজি, যোগী মহারাজ। সকলের তরফ থেকে আমার প্রণাম। আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের এই রাজারহাট গোপালপুরের প্রার্থী তরুণ তিওয়ারি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন স্বপনদা, মাননীয় ইউপির মন্ত্রী দয়াশঙ্কর মিশ্রাজি, প্রত্যেকের এবং আরো অনেকেই আছেন, প্রত্যেককে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। বন্ধু, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। দুহাত তুলে হচ্ছে না, জোর করে পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। 26-এর নির্বাচন, 26-এর নির্বাচন। তাই এই তৃণমূলের বিসর্জনকে সুনিশ্চিত করতে আগামী 29 তারিখ যে নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচনে আমি জনগণের কাছে আবেদন রাখবো, আপনারা সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে মতদান করবেন, ভোট দান করবেন। কারণ কোনো হিংসার কাছে আপনারা ভয় পাবেন না। যেভাবে প্রথম নির্বাচন হয়েছে, প্রথম দফায় নির্বাচন হয়েছে, ঠিক সেভাবে এই দ্বিতীয় দফাতে নির্বাচন হবে। আপনারা কেউ ভয় পাবেন না। এই নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের নির্বাচন। এই নির্বাচন চাকরি হারাদের চাকরি পাওয়ার নির্বাচন। এই নির্বাচন যে মেয়েটা হারিয়েছে, যে মা মেয়েকে হারিয়েছে, সেই মেয়ের বিচার পাওয়ার নির্বাচন। তাই আসুন, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না, যে আগামী নির্বাচনে আমরা যেভাবে নিরলস পরিশ্রম করেছি, সেই পরিশ্রমের ফসল তোলার নির্বাচন। প্রত্যেক ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাকে অনুরোধ করবো, বুথে লড়াই দিন, বুথে সকাল সকাল বুথে যান, বুথে গিয়ে লড়াই দিন, আর সেই লড়াই আমাদেরকে জয় এনে দেবে, এটা নিশ্চিত করবে। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। এবার বক্তব্য রাখবেন বিধানসভার সেই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, সবার প্রিয় তরুণ তিওয়ারি। नमस्कार। यूपी के मुख्यमंत्री, हम लोगों के अत्यंत प्रिय जोगी जी आए हैं, उनका आभार प्रणाम। जोगी जी, आपके साथ यहाँ पे बुलडोजर भी आ गया, सामने बुलडोजर भी खड़ा है। यूपी कुछ साल पहले यूपी जाना जाता था गुंडा राज के लिए, आज यूपी शांत है। আজকে ইউপি শান্ত, আজকে ইউপি যে শান্ত, সেই লোকটার জন্য, যে শক্ত প্রশাসনের জন্য তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত। একজন সন্ন্যাসী যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয় কতটা ভালো হতে পারে, এটা যোগী দেখিয়েছেন। একটা হাততালি যোগীজির জন্য। বন্ধু, 2026-এর নির্বাচন হচ্ছে পরিবর্তনের নির্বাচন। এই নির্বাচনে জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। যোগী মহারাজ কি জয় হো, মহারাজ কি জয় হো। 26-এর নির্বাচন হচ্ছে অধিকার রক্ষার লড়াই, হিন্দুদের বাঁচার শেষ লড়াই। হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাস, মনে আছে আপনাদের? তারা হিন্দু ছিল, এই জন্য তাদের কুপিয়ে খুন করা হলো। আপনাদের মনে আছে আমাদের ভাই প্রসেনজিৎকে, যাকে ঝুলিয়ে মেরে দেওয়া হলো? আপনাদের মনে আছে চাকরি চুরি কিভাবে হয়েছে এখানে? আপনাদের মনে আছে মানুষের অধিকার লুট হয়েছে এখানে? 2011-তে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন আসবে, শিল্প হবে, কলকারখানা হবে, মানুষের জীবন জীবিকা ভালো হবে। আমরা দেখলাম 2011-র পর থেকে এই রাজ্যে দুর্নীতি শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গেল। দুর্নীতি ছাড়া কিচ্ছু হলো না এই রাজ্যে।
আমরা দেখলাম মানুষ গরিব হলো, গরিব মানুষ আরো গরিব হলো এবং তৃণমূল নেতারা বড়লোক হলো। আপনাদের এই এলাকার বিধায়িকা, আমি বলে যাচ্ছি, আপনাদের এই এলাকার বিধায়িকা এবং তার স্বামী গত 3-4 বছরে প্রায় 300 কাঠা জমি কিনেছে, প্রপার্টি কিনেছে। এই 300 কাঠা জমি প্রপার্টি তারা এই বছর 25/3/2026 অর্থাৎ 25শে মার্চ 2026-এ এই সম্পত্তি তারা বিক্রি করে দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, এত টাকার প্রপার্টি কিনলো কি করে? প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, বিক্রি হলো কি করে? এই চোরগুলোকে তাড়ান, চাকরি চোরগুলোকে দূর করুন, পরিবর্তন আনুন, একসাথে বলুন পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। ধন্যবাদ। যার জন্য আমরা তখন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছি রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভায় তার বক্তব্য শোনার জন্য সেই উত্তরপ্রদেশের তথা ভারতবর্ষের অন্যতম মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জি। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। जय मां काली, जय मां दुर्गा। भारतीय जनता पार्टी राजरहाट गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार से तरुण ज्योति तिवारी जी, सुखांडु मजुमदार जी, स्वपन राय चौधरी जी, अमर दत्ता जी, चंद्रशेखर वाली जी, सरस्वती विश्वास जी, स्वपन सिकदर जी, संजय दास जी, राणा चटर्जी जी, सोमा राय चौधरी जी, अनिल गिरी जी, समदू दास जी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी। आज के इस विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में राजरहाट गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उत्साही बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विराजमान मां काली के श्री चरणों को नमन करते हुए इस पूरी धरा को प्रणाम करता हूं और आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम लोगों का यहां पे एक जोरदार रोड शो का कार्यक्रम होना था, लेकिन टीएमसी की सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी और इसके कारण यहां हमने एक सभा के रूप में ही इस कार्यक्रम को यहां पर प्रारंभ किया है और इसकी पूर्णाहुति जब तरुण ज्योति तिवारी विधायक बनेंगे और बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो जोरदार रोड शो के रूप में यहां पर फिर हम लोग आएंगे। बहनों और भाइयों, जब बंगाल की हम बात करते हैं तो बंगाल त्याग और बलिदान की भूमि है। बंगाल भारत की समृद्धि और स्वाभिमान की भूमि है। बंगाल साहित्य की, कला की, संस्कृति की, विज्ञान की भूमि है।
और यह धरा भारत की प्रेरणा भूमि भी रही है। आप सोचिए, जिस बंगाल ने भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की कृति भारत के राष्ट्रगान के रूप में, जनगणमन के रूप में पूरे भारत के अंदर स्वीकार किया जाता है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के कालजयी अमर उपन्यास आनंद मठ की वंदे मातरम का गीत भारत का राष्ट्रगीत बना। एक बड़ी प्रेरणादायी भूमि। पूरी दुनिया के अंदर इस्कॉन के सन्यासी जहां कहीं भी मिलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का संकीर्तन, हरि संकीर्तन करते हुए जब जाते हैं, हर व्यक्ति को बंगाल की याद आती है, नवद्वीप की याद आती है, नादिया की बात उसको स्मरण हो आती है। और चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने इस हरि संकीर्तन के कार्यक्रम से पूरे बंगाल को जोड़ा था और बंगाल के माध्यम से भारत को जोड़ा था, उनका स्मरण करते हुए हर व्यक्ति उनके सामने नतमस्तक होता है। बहनों भाइयों, बंगाल की धरा ने रामकृष्ण परमहंस जैसा सन्यासी दिया, लाहड़ी महाशय जैसा साधक दिया, स्वामी प्रणवानंद जी जैसा सन्यासी दिया, और युग दृष्टा सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद भी दिया, जिन्होंने पूरे भारत का उद्घोष किया था, भारत के युवाओं का उद्घोष किया था। और उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की भूमि है, प्रेरणा बंगाल से मिल रही है और वह पूरे देश के अंदर छा जाती है। याद करिए, यही धरा है महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की धरती, सत्येंद्रनाथ बोस की धरती। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका उद्घोष करने वाले भारत के आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरा है बंगाल। जिस धरा पर खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमे थे। भारत के स्वाधीनता की पहली चिंगारी जलाने वाला बैरकपुर बंगाल में है। और जब अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की शरारत की थी, पूरा बंगाल एकजुट होकर के खड़ा हो गया था और स्वदेशी के उद्घोष के माध्यम से भारत की आजादी का बिगुल इसी बंगाल की धरती से फूंका गया था। बहनों और भाइयों, वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर गीत बना था, वो बंगाल ने दिया। लेकिन आज भारत को पहचान देने वाला बंगाल स्वयं अपनी पहचान के लिए मोहताज है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन का काम करने वाला बंगाल आज कंगाल है। पूरे उत्तर भारत को नौकरी और रोजगार देने वाला बंगाल आज यहां पे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, नौजवान बेहाल है, बेरोजगार है, किसान अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती आज बंगाल हो गई है। और इसीलिए इस गुंडा राज, इस कुशासन और इस अराजकता से मुक्ति के लिए चुनाव सबसे अच्छा माध्यम है। बहनों और भाइयों, 13 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में जो रुझान देखने को मिला है, बंगाल ने परिवर्तन की ठानी है। और मैं कह सकता हूं कि बंगाल में अब डबल इंजन सरकार के लिए हर बंगाल का नौजवान उठ खड़ा हुआ है, हर बहन, हर बेटी खड़ी हुई है। और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए
जो बंगाल कभी भारत की कल्चरल कैपिटल कहलाती थी, टीएमसी और कम्युनिस्टों ने उसे क्राइम कैपिटल बना दिया है। जो बंगाल और जो कोलकाता नॉलेज सिटी थी, आज वहां की क्या स्थिति है? ममता दीदी को परेशानी होती है, अगर कोई हिंदू जय श्री राम बोलते उनको परेशानी होती है। दुर्गा पूजा नहीं होने देती है, दुर्गा पूजा विसर्जन के शोभा यात्रा को रोकती है, लेकिन इफ्तारी पार्टी का स्वागत करती है। बहनों और भाइयों, आज मुझे तारकेश्वरी में तारकनाथ मंदिर में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आप याद करिए, टीएमसी ने 15 वर्ष में वहां कुछ नहीं किया। अगर डबल इंजन की बीजेपी की सरकार होती, तारकनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर होता, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर का निर्माण होता। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले यही स्थिति थी, यही अराजकता, यही गुंडागिर्दी, यही कुशासन, इसी प्रकार की अराजकता। सड़कें शुक्रवार के दिन नमाजों से पड़ जाती थी, आवागमन बाधित हो जाता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। पूजा उत्सव, कोई पर्व त्योहार हिंदुओं के नहीं हो पाते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी आज भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन गया है। अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, इफ्तारी की दावत नहीं होती है, बल्कि वहां पे हर हर बम बम के उद्घोष करते हुए शिव भगवान की कावड़ यात्राएं निकलती है। जय श्री राम का उद्घोष होता है, वृंदावन बिहारी लाल की जय के उद्घोष होते हैं। आज उत्तर प्रदेश बदल गया है, बीमारू राज्य से उभर गया है, लाखों नौजवानों को नौकरी दे रहा है, हर बेटी को सुरक्षा और हर नारी को स्वावलंबन और सम्मान देते हुए आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश विकास के नए नए कीर्तिमान डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में स्थापित कर रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, यह अवसर है आपके पास टीएमसी की अराजकता और कुशासन से मुक्त होने का, बंगाल के वैभव को पुनर्स्थापित करने का। बंगाल के दिल में काबा नहीं, बंगाल के दिल में काली है, माता काली है, इसका एहसास कराने के लिए। बंगाल के नयनों में मां दुर्गा है, मां दुर्गा, मदीना नहीं है, मां दुर्गा है, इसका एहसास कराने का समय आ गया है। और इसीलिए मैं कहता हूं, ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी, एसपी, इन सब ने प्रयास किया था अयोध्या में राम मंदिर रोकने का। डबल इंजन सरकार आई, क्या ये राम मंदिर बनने से रोक पाए? आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त। और अगर कोई माफिया सिर उठाता है, यूपी का बुलडोजर उसको सड़कों पर, एक्सप्रेसवे पर उसकी हड्डी पसली एक करता है। और आपके बुलडोजर को भी सुनकर के अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। और इसीलिए कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों,
ममता दीदी जो अब तक कहती थी कि खेला हो बे, अब मैं कहूंगा कि ममता दीदी खेला शेष, ए बार खेला शेष, ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू, खेला शेष, उन्नयन शुरू। और उस दिशा में हम सबको कार्य करना है। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, मैं यहां से कहूंगा आप सब मेरे साथ उसका उद्घोष करेंगे, सभी लोग करेंगे। मैं कहूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला, बोलेंगे ना? सब लोग बोलेंगे। मैं कहूंगा मेरे साथ फिर दोहराएंगे, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा अंधकार, आप कहेंगे होटबे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठबे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलबे। बोलेंगे ना? मेरे साथ बोलेंगे अंधकार, 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 सूरज, दोनों हाथ ला करके बोलो, सूरज, 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 कोमल, कोमल, कोमल। मैं कहूंगा पलटाना दोरकार, पलटाना दोरकार, पलटाना दोरकार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे, वंदे, वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ধন্যবাদ আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীকে যোগী আদিত্যনাথজির জন্য জোরে হাততালি, আমাদের প্রার্থীর জন্য জোরে হাততালি।